اندر کی تبدیلی، یہ مضمون اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشگوار صبح کا ذکر ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، بڑی شدت کا جاڑا تھا اور بڑی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہم ڈیرے پر موجود بابا جی نور والے سے ان سے کچھ باتیں سننے کی آرزو لے کر بیٹھے تھے۔ جب میں آپ سے ڈیرے کا یا بابا کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اگر اس کے بجائے یہ کہتا کہ ہم ایک روز انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن کے لان میں بیٹھے تھے اور ہمارے ڈائریکٹر مسٹر بشک نے ہم کو ریلیٹڈنیس ٹو ہیومن ریس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، تو آپ کو سمجھنے میں غالباً آسانی ہوتی۔ بات یہ ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی دنیا ہے۔ پہلے واضح طور پر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، یعنی گل کے معنی پھول ہیں، یا آہن کے معنی لوہا ہیں، یا بال جبریل کے معنی جبریل کے پر ہیں۔ لیکن الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے، ان کا ایک قد و قامت بھی ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ان کی تلخی بھی ہوتی ہے اور ان میں شفقت بھی ہوتی ہے، اور ان کی ساری شخصیت اور ساری ترتیب جو ہوتی ہے وہ اپنے طور پر پڑھنے والے اور سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس لیے ڈیرے کا لفظ اپنے تمام کونوٹیشن کے باوجود ہماری گرفت میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم وہاں سے گزرے نہیں، وہ ہمارا کبھی مصرف نہیں رہا۔ تو ہم وہاں بیٹھے تھے اور اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ تجاویز پیش کر رہے تھے، کچھ پروگرام بنا رہے تھے۔ وہاں پر مولوی موسیٰ آف مسٹری ہوتے تھے، بڑے تیز و ترار اور بڑے دانشور، اور اللہ نے ان کو ایسا ذہن رسا دیا تھا کہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے تھے، بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے۔ کونے میں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب بادام روغن نکال رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈیرے پر چونکہ لوگوں کا علاج بالغذا ہوتا تھا، غذا دے کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا، اور بابا جی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی غذائیں پیدا کی ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ہر جڑی بوٹی، ہر غذا، ہر اناج، ہر گوشت کی قسم ایک خاص بیماری کے لیے مفید ہے۔ تو بادام روغن جو نکلتا تھا وہ مشین سے نہیں نکلتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مشین سے نکالا جائے تو لوہے کے دو پہیوں کے درمیان آ کر ریزیڈیو، کچھ حصہ لوہے کا کچھ شامل ہو جائے گا اور وہ خالص نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہاں پر بادام روغن ہاتھ سے نکالا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بات میں نے جب پہلی بار سنی تو یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان آتا ہے بادام کی گریاں لے کر اور یوں دباتا ہے اور چر ایک دھار نکلتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بادام کو کوٹتے ہیں، کوٹ کر ایک خاص ٹیمپریچر پر گرم کرتے ہیں اور پھر اسے پرات میں رکھتے ہیں اور پرات کا ایک حصہ اونچا کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ان گرم ہوئے ہوئے سیدھے باداموں میں سے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، کچھ خود بخود، اور کچھ ان کو آٹا گوندنے کے انداز میں بعد میں نکالا جاتا ہے، اور وہ تقریباً اتنا ہی نکل آتا ہے جتنا کہ ایک مشین نکالتی ہے، لیکن اس کی رنگت، اس کی خوشبو یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو درمیان میں آپ سے ضمنی بات کر گیا۔ تو وہاں پر جو رائے پیش کی جا رہی تھی ان میں ہم نے بڑے پروگرام بنائے، جیسے آپ ہم سب جب بھی مل بیٹھتے ہیں پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، اگر یہ کیا جائے وغیرہ۔ تو بابا جی یہ باتیں سنتے رہے تو انہوں نے کہا، انسان کو راستے پر لانے کے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو خرابی ہو، جو خطا ہو، جہاں جہاں پر کوئی خامی ہو، جہاں پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہو، اس کو دور کیا جائے۔ سیاستدان اور حکمران اور جہاں بان، یہ سارے اس طرح سے علاج کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو اسے دور کرنے کے لیے وہاں پہنچا جائے۔ اس کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار، بابا جی نے کہا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ وہاں پر جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کے اندر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی اس خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔
अपनी खामी को दूर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको वैसे का वैसा ही रहने दें और उनकी कोताहियां दूर करने की कोशिश करते रहें, तो अब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और आप देखते रहेंगे कि आपके यहाँ बड़ी खराबी है। इसे दूर किया जाए तो अंदर का दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। और वहां पर भी यही तालीम मिलती थी कि बाहर से तुम जैसे कैसे भी हो, अंदर से ठीक होना बहुत जरूरी है। और जब तक अंदर ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी मशीन ठीक नहीं चलेगी। हमारे एक दोस्त थे, उनके अब्बा मखदूम साहब के पास एक कार होती थी, क्राइसलर। पता नहीं अब है कि नहीं, खत्म हो गई होगी, बड़ी सुबक खूबसूरत सी अच्छी। मखदूम साहब के पास सारे बहावलपुर में नवाब साहिबान के बाद उनकी कारें होती। हमारे दोस्त रफीक उनके साहबजादे थे। वो कार चलाते रहे और एक अरसा गुजर जाने पर जब उनका मुअय्यन वक्त आया तो गाड़ी चलने से इनकारी हो गई। अब मखदूम साहब ने उसे एहतियात के साथ, अदब के साथ, इज्जत और अफजाई के साथ उसे एक छप्पर के नीचे ईंटों के ऊपर खड़ा कर दिया। कुछ अरसे के बाद मखदूम साहब फौत हो गए और रफीक ने यह सोचा कि ये इतनी अच्छी कार है और इसका अंदाज और इसकी साख बहुत बेहतर है, तो इसे चलाया जाना चाहिए। तो वो कोशिशें करते रहे। जहाँ समझदार लोग होते हैं तो बड़े साहब की खुशामद वगैरह करते हैं, तो उन्होंने कहा साहब ऐसे करें कि उसका रंग बदल दें। जब तक इसके ऊपर अच्छा और नया रंग नहीं होगा ना, ये ठीक नहीं होगी। हमारे भी घरों में अक्सर जब खवातीन इस्लाह करें, सबसे पहले कहा जाता है ड्राइंग रूम बदल दें, कुर्सियां इधर रखें, मेज इधर चला जाए, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अक्सर आदमी भी कहते हैं, उन्होंने भी यही राय दी। उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सारा रंग उतरवा कर उस पर नीला रंग करवाया, तब स्टार्ट की, लेकिन स्टार्ट ना हुई, इसलिए कि नीले रंग से तो कुछ नहीं होता। वहां के एक पटवारी थे, उन्होंने कहा कि क्राइसलर का रंग नीला नहीं होता, स्टील ग्रे होता है, आमतौर पर यह काला होता है। तो आप अगर इस पर स्टील ग्रे करें तो अच्छा है। तो स्टील ग्रे करवाया गया तो पता ये चला कि जब तक उसका अंदर ठीक नहीं होगा ये नहीं चलेगी। हमारी भी यही कैफियत है, हम अपने ऊपर स्टील ग्रे रंग करवा के घूम रहे हैं और सोचते हैं कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने देखा होगा सियासी जमातें आती हैं, आती रहती हैं, चली जाती हैं, और हर एक ये दावा करके आती है बड़ा रास्ती से, नेक नियति से, कि जनाब हम आएंगे तो तुम्हारी काया पलट देंगे। अच्छा वो आते हैं तो उनका भी तरीकाकार वही होता है। इतना सब्र उनमें नहीं होता कि वो अंबिया का रास्ता इख्तियार कर सकें और लोगों को तब्दील कर सकें। छोटे से ग्रोह को तब्दील करते नहीं कर सकते। वो कहते हैं चलिए हम ये कर देंगे, यहाँ सड़क बना देंगे, पुल तामीर कर देंगे, ये कूचे आपके ठीक कर देंगे, सफाइयाँ कर देंगे। लगे रहते हैं बेचारे, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि वो ग्रोह इंसानी जो इसके जी के मुकाम पर रहता है तब तक ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक वो मुकाम ठीक नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लें। और आदमी को पता नहीं चलता कि उसके अंदर कजी कब कैसे क्यों वाकई हुई। वो यही समझता रहता है कि मेरे इर्द गिर्द के माहौल की सारी खराबी है। मेरी कोई खराबी नहीं। अपनी खराबी पर कोई गौर नहीं करता है और वो सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है और कहता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए ये करें, उनको चाहिए वो करें। बूटी माफिया क्यों होता है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। फला चीज क्यों होती है, उसका अजाला हो। लेकिन अगर बैठ के आदमी कभी मुराकबे के अंदाज में सोचे और गौर करे और अपने सेल्फ को जाने और निखारने की कोशिश करे, तो फिर उसको पता चलेगा कि मेरे अगर सेल्फ के ऊपर की कुंडी इस मछली को फंसा ले तो पता चलेगा उसके अंदर बहुत सी कोताहियां और खामियां मौजूद हैं, जो मैं अगर दूर कर दूंगा जैसे कि बाबे ने किया था तो मेरा माहौल ठीक हो जाएगा। आदमी को यकीन नहीं आता, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना आप ठीक कर लूं और इर्द गिर्द सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे पास एक बड़ा अच्छा क्लॉक था, पुरानी वजह का, मेरे अब्बा जी का था। उन्होंने बड़े शौक से अपने बचपन में अपने बाप से कह कर या अपने दादा से कह कर लिया था। आपने की लकड़ी थी और लंबी लिंकन थी, जो थी पेंडुलम।
और हिंसे जो थे वो रोमन हिंसे थे, जैसे रेलवे स्टेशनों पर खिड़कियों में होते हैं। बिल्कुल काली स्याह सुई और लगा हुआ वो घर में बड़ा अच्छा और खूबसूरत दिखाई देता है। उस इसका इताश जब वो घड़ियाल बजाता है तो दूर दूर तक उसकी आवाज जाती है। अचानक अच्छा भला चलता चलाता वो क्लॉक एक दिन रुक गया तो मुझे बड़ी तशवीश हुई और परेशानी हुई। मैंने उसको खोल के जो उसका जो लटकन था, उसका जो पेंडुलम था, उसको हिलाया। जो आदमी किया करता है तो वो चला। तो 7 बजे मैंने हिलाया, 8:15 तक चला, फिर बंद हो गया। अक्सर आपको तजर्बा हुआ होगा। फिर मुझे किसी सियाने ने बताया कि इसके अंदर की सुइयां घुमाएं तो फिर ये ठीक होगा। तो मैंने पेंडुलम को भी चला दिया, सुइयों को भी छेड़ा, वो भी चला। तो बजाय 1 घंटे के चलने वो 2 घंटे चल गया। अब सुइयों की हरकत में फर्क पड़ा, लेकिन फिर बंद हो गया। तो मैंने उसको उतार के बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मजीद कोशिश भी की। या अल्लाह, ये कैसे ठीक होगा। इसको फिर मैं ले गया एक बहुत बड़े घड़ी साज के पास जो मॉल रोड पर है। उसको जाकर मैंने दिखाया। उसने देखा और कहा, अशफाक साहब, ये बहुत पेचीदा क्लॉक है और ये पुराने जमाने का है और इसकी मशीनरी जो है ये हमारी समझ से बाहर है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है। आप इसे तारीखी चीज समझें और अजायब घर का एक हिस्सा बना लें। यह नहीं चलेगा, इसे तो नवातरात समझें। मैं जब बहुत मायूस हुआ और उसने मेरा उदास चेहरा देखा तो उसने कहा, आप इसे छोड़ जाएं, मैं इसे देखूंगा। शायद इसमें कोई ऐसी सलाहियत हो कि खुद ही मुझे बता दे अपनी तरफ से, वरना मेरे पास कोई कागज नहीं है, ना मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया है। मैं इसे छोड़ आया। दूसरे दिन मैं शाम को गया तो उसकी दीवार के साथ लगा हुआ था और खटाखट चल रहा था। इतनी खुशी हुई मुझे। तो मैंने कहा, ठीक हो गया। कहने लगा, हाँ जी। मैंने कहा, अब तो नहीं रुकेगा। कहने लगा, नहीं जी। मैंने कहा कि आप तो कह रहे थे पेचीदा है। हाँ जी, पेचीदा बदस्तूर है। तो मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी, बताइए इसकी क्या उजरत, कितने पैसे हुए। कहने लगा, कोई पैसा नहीं। मैंने कहा, क्यों, आप क्या फरमा रहे हैं। इतना पेचीदा क्लॉक आपने ठीक किया है, उसकी कोई उजरत नहीं ले रहे। कहने लगा, देखिए मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने इसे खोल के देखा तो उसकी गरारियों में फूस, खद्दर झाड़ू देने से जो उठता है, 25 सालों का वो गुबार, गद्दो गुबार, वो सारे फंसे हुए थे। वो मैंने साफ कर दिया और कुछ नहीं किया। हाजरीन में से बात तो सर उसकी है जो दीदाए बीना की है, जो इंसान अपनी खामी देख सके। अशफाक साहब बजा, ठीक है, वो भी आपको बता सकता है, लेकिन ये आपके इरादे पर मुनहसर है, आया कि आप अपनी इस्लाह करने की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं। मैं इतनी उम्र का अब सबसे बड़ा हूं उम्र में। मैंने कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं की। मैं तो कहता हूँ कि लोग ठीक करें, लोग ठीक हो जाएं। मैं तो अक्सर ये कहता रहा, अब जाके मुझे समझ आई, लेकिन अब थोड़ा टाइम थोड़ा रह गया है। अब हम अपने आप को करेक्ट करने से माजूर हुए हैं। तो जब क्लॉक चल गया तो मैंने लगा दिया घर आके। तो मैं बैठ के सोचने लगा, कुर्सी पर मेरी जात के अंदर भी बड़ा खद्दड़ फूस जमा हुआ हुआ है। इसकी वजह से नहीं चल रहा हूँ और जगह जगह रुक जाता हूँ। हाजरीन में से जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो फिर ये सारा हो सकता है, अंदर की सफाई मुमकिन है। अशफाक साहब, मैं समझता हूँ कि जब बंदा तहैया कर ले और उसको समझने लग जाता है, बहुत सी चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन मेरा तहैया नहीं बन रहा, इरादा मजबूत कि मैंने अब इसको सेट राइट करना है। जिस तरह एक जर्नैल होता है ना, तो वो वजन करके लश्कर में घुस जाता है, वो एक इरादा और तहैया होता है, ऐसा नहीं बनता। हाजरीन में से मुझे एक बंदे ने कहा, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, अंदर की जून से गर्द है उसको साफ करना चाहता हूँ, और मैयत चाहता हूँ, करना चाहता हूँ किसी भी बुजुर्ग की, और मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये कहाँ तक ठीक है कि ढूंढने से ये होता है, या पहले तहैया तो बंदा करे। इशफाक साहब देखिए, वो तो साहब जो हैं, मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता कि झूठ कह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा और वो बेइज्जत करने से या किसी आदमी का हाथ पकड़ने से अपने आप को ठीक सही करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा प्रोग्राम पहले से मौजूद है।
जो ठीक रास्तों पर उनको ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सारी जिंदगी मुझे कभी ये उलझन नहीं हुई कि मेरा कलाम पाक में कोई चीज ऐसी पेचीदा है जो समझ ना आती हो। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। मेरा दुख ये है, मेरी जो चीजें मेरी समझ में आ गई हैं मुझसे उन पर अमल नहीं होता। बाकी मैं दूसरी तरफ जाता ही नहीं। मसलन पिछले 75 बरस से मुझे एक बात समझ आई है कि कौलन नास हंसना, लोगों के साथ अच्छी बात करो। और मेरी ये हसरत ही चली आ रही है कि मुझसे अच्छी बात हो नहीं पाती, गुस्सा आ जाता है, तबीयत में इनकबाज पैदा हो जाता है और तरह का एकदम कांटा बदल तब्दील हो जाता है। तो जब एक आदमी का तहैया हो जाए कि मैंने इस रास्ते से उस रास्ते पर जाना है, तो अल्लाह फिर उसको बरकत देता है। और फिर वो आदमी जिसकी तलाश में होता है वो एक दिन खुद सुबह 5 बजे आके उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ढूंढने की जरूरत पेश नहीं आती। तहैया हो तो फिर होता है, अगर ना हो फिर मुश्किल है, फिर आदमी ढूंढता रहता है कि बताएं अशफाक साहब, कोई अच्छा सा बाबा है ना। क्योंकि अभी उसका इरादा नहीं, उसका सिर्फ प्रोग्राम यही पूछना है कि नारोवाल को गाड़ी कब जाती है, कहाँ कहीं जाना है। कहेगा मैंने जाना तो नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। हमारे बाबे जिसको कहते हैं तलावतुल वजूद। जब आप अपने वजूद की तलावत शुरू करते हैं और फिर देखें क्या अजीब टर्म है, फिर आपको पता चलने लगता है। मैं हमने तो कभी की नहीं। हम तो अपने वजूद से हमेशा दूर रहते हैं, उसको करीब नहीं आने देते। आप कभी अपने साथ अकेले बैठ के देखें, 15 मिनट कोठरी बंद करके। पता है कैद तन्हाई सबसे खौफनाक सजा होती है। अपने साथ बैठोगे तो बहुत सारे सच आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आदमी चीख मारता है, भागता है। ये बड़े इरादे और तहैये वालों का काम होता है, जो ऐसी बात करें कि मुझे अपने अंदर को ठीक करने की जरूरत है। मुझे याद है कि नेपोलियन नेपोलियन आजम जब फ्रेडरिक की कब्र पर गया तो उसने देखा कि फ्रेडरिक की कब्र के ऊपर उसकी तलवार लटक रही है, बड़ी रोशनी उस पर पड़ रही है। उसने हुक्म दिया कि अपने जनरल से कि तलवार को उतार कर पेरिस के अजायब घर की नजर कर दो। तो वो तलवार उतारी गई और बाद में उतार के नेपोलियन के हुक्म पर उसको पेरिस के अजायब घर में रखवा दिया गया। बहुत बड़े बादशाह की ये तलवार है। जर्नैल ने तलवार उतार कर कहा, जैसा कि हम करते हैं खुशामदी अंदाज में, कि सर अगर ऐसी तारीखी तलवार मुझको मिलती तो मैं कभी अपने पहलू से जुदा ना करता। तो नेपोलियन ने जोर से अपनी तलवार पर हाथ मारा और कहा, क्या मेरे पास मेरी तलवार नहीं है। तो आपके पास आपकी तलवार है, इसलिए जब तक आप इस तलवार पर हाथ मार के शिद्दत से नहीं कहेंगे कि मैं और ये मेरी तलवार, हम दोनों एक हैं, और फिर आप किसी और तरफ नहीं झांकेंगे, तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या कभी ऐसा हुआ, क्या कभी ऐसा हो सकेगा। मैं असलम साहब से, जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं और अखबार नवीस भी हैं, माशाल्लाह असलम साहब, कभी मैं अपने तौर पर ऐसे सोचता हूँ कि हम लेटर्स टू द एडिटर्स लिखते हैं और इसमें अक्सर और बेशतर शिकायत होती हैं कि हमारे यहाँ गंद के ढेर पड़े हैं, तवज्जो नहीं दी कारपोरेशन वालों ने। और हालांकि उनके इलेक्शन भी हो गए और बिल्कुल बैठे हैं और कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ यहाँ सिस्टम में ये खराबी पैदा हो गई है। हमारे यहाँ पर नकल बहुत बढ़ गई है, वगैरह वगैरह। क्या कभी आपके नेहा खानों और आपके ख्याल में या आपकी याददाश्त में कभी कोई ऐसा खत टू द एडिटर लिखा गया है? मोहतरमी जनाब एडिटर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पर गंदगी के ढेर पिछले 10 हफ्तों से पड़े हैं और इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेहरबानी फरमाकर अपने स्टाफ में से कोई नेक और दर्दमंद बंदा भेजें जो आकर हमारे दिलों को तब्दील कर दे और हम गंद उठाने वालों के बजाय खुद इसकी सफाई करें। मेरे ख्याल में ऐसा लेटर कोई छपा नहीं कि हम दर्दमंदी के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ ये खराबी पैदा होगी। आप ऐसा करें कि आप हमको ऐसा बंदा भेज दें जो हमारे अंदर वो सोया हुआ जौहर जो है उसको जगा दे, और फिर हम अपने पाँव पर खुद खड़े हों। कुछ भी नहीं है ये इम्तिहान देना, ये स्कूल में बैठना, ये आगे चलना, ये सफाई रखना। अब देखिए ना, सुर्ख बत्ती पर खड़े होना,
हमारे लिए जान का अज़ाब बना रहता है। अब हम चाहेंगे कि हम किसी को अखबार के एडिटर को ज़रूर लिखें। आज के बाद के मेहरबानी फरमाकर कोई ऐसा आदमी हमारे दरमियान भेजें जो हमारे अंदर ये बात पैदा कर दे, जागज़ी कर दे कि हमने सुर्ख पत्ती पर खड़े होना है। बिल्कुल कुछ इस तरह से। मैं कुछ अर्ज करूं जैसे कि बाबा जी ने कहा था, अंबिया की तालीम में क्या फ़र्क है। हम जैसे लोगों को जब आपके सामने हमारी कोताहियां खराबियां आपके पास मौजूद हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी तालीम का असर कैसा चला आ रहा है। हम अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर कोताहियों के होते हुए, जब अंबिया के बताए हुए हुक्म पर रोज़ा रख लेते हैं, तो हम कभी गुसल खाने में कोठड़ी में जाकर कुछ नहीं खाते। हालांकि सिपाही खड़ा होता है, ना वहां पर गवर्नमेंट का डर होता है और ना ही चालान होने का खतरा होता है। गर्मियों के जब रोजे आते हैं, प्यास से मर जाते हैं, खप जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है। गुस्लखाने में जाकर 3-3 मरतबा नहाया करते थे, लेकिन वहां बड़े मजे से चुल्लू लगाकर आदमी पानी पी ले। कौन देख रहा है, कौन रोक सकता है, लेकिन नहीं पीता। वो ये कि अंतर तब्दील होता है। लेकिन अब जब आते हैं, अब जब अंदर तब्दील नहीं होता और इर्द गिर्द तब्दील हो जाता है, तो बाबे कहते हैं जब इर्द गिर्द तब्दील होता रहेगा, आप मरहूने मिन्नत रहेंगे लोगों के, और आपकी जिंदगियों में वो इस्तकामत और इस्तवारी पैदा नहीं होगी जो कि होती है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आइंदा से हम ऐसे ही एक दो लेटर टू द एडिटर लिखें। हाँ, एक रस्म पड़नी चाहिए कि जनाब हम ठीक होना चाहते हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे, कैसे। एक दफा किसी बुजुर्ग ने कहा कि बगदाद की दाना मंडी के बाहर एक पत्थर के ऊपर शैतान बैठा रो रहा है। तो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। वो उसके करीब गए और कहने लगे कि इब्लीस क्या है, तू रो रहा है। उसने कहा, जी, मेरा बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा, ना भाई ना, तू तू न रो, तुम्हें तो इतने काम बिगाड़ने हैं लोगों के, अगर तू ही रोने लग गया तो क्या होगा। उसने कहा, बाबा जी मेरा दुख। उसने उन्होंने कहा, दुख क्या है। कहने लगा, जी मेरा दुख ये है कि मैं अच्छा होना चाहता हूँ और मुझसे हुआ नहीं जाता। तो ये तो दुख हम सबका है। हम जोर तो लगाते हैं, बड़ी कमाल की बात की उसने, कि हम अच्छे तो होना चाहते हैं, हुआ नहीं जाता। चाहिए कि हम होने की कोशिश तो करें, ये ख्वाहिश तो करें कि हम अच्छे हो जाएं, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी बात तो होती रहती ही है, गुफ्तगू भी होती रहती है, लेकिन हम रोए कभी नहीं। इब्लीस हमसे बेहतर था कि सचमुच रोया, वो बाजी ले गया। मैं ये समझता हूँ कि अब इस गुफ्तगू के बाद हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि लौट के अपनी ज़ात तक, सिर्फ अपनी ज़ात तक, कि हम अपना क्लॉक जो है उसके अंदर जो खतर फूस फंस गया है उसको निकालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, मेहरबानी इस प्रोग्राम को देखने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपके बड़े ममनून हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ फरमाए, अता फरमाए, और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।